Hello students, let's start question number 4 of utility analysis. In previous lecture, we have already studied the law of diminishing marginal utility. In this lecture, we are going to study the next part, that is assumptions and exceptions to the law of DMU. Before going further, let's revise it what we have discussed in the last lecture. अगर हम DMU की बात करें तो लॉ ऑफ DMU क्या कहता है? As consumption increases, marginal utility decreases. As consumption increases, marginal utility decreases. Introduction में क्या लिखा था हमने? The law of DMU was proposed by Mr. Gaussen. This law is also known as Gaussen's first law or law of consumption. It is elaborated or given by Alfred Marshall in the 18th century in 1890. He wrote a book, Principle of Economics. He studied the behavior of rational consumer. Now meaning में क्या लिखा था? As you consume additional unit, the expected satisfaction goes on diminishing. As you consume additional unit, the expected satisfaction goes on diminishing. In short, consumption increases, marginal utility decreases. Definition में क्या लिखा था? According to Alfred Marshall, other thing being constant, the additional benefit which a person derives from the increase in the stock of thing diminishes with every increase in the stock that he already has. उसके बाद हमने schedule बनाया था, that is schedule. Schedule means table. The table shows that marginal utility keeps on diminishing with every increase in consumption. Further it becomes zero and then negative. फिर हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, that is diagram. डायग्राम हमको क्या शो कर रहा था? X axis shows the units of commodity and Y axis shows the marginal utility. Marginal utility curves slopes downwards from left to right towards the x-axis. Marginal utility curves slopes downwards from left to right towards the x-axis. When he consumes sixth unit, marginal utility becomes zero and then negative. ये हमने पिछले लेक्चर्स में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है. जिन्होंने ये लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखें एंड देन फिर आगे की तरफ चलेंगे. तो नाउ चलते हैं assumptions of DMU and exceptions of DMU की तरफ. Now students, assumption means what? Assumption means condition. Assumption means condition. Let's take example. Suppose एक ड्रंकर्ड है. ड्रंकर्ड मीन्स शराबी. हम उसको पानी पिलाते हैं और पूछते हैं बताओ तुमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला. वो बोलता है 30 का सेटिस्फेक्शन मिला. फिर हम उसको पेप्सी पिलाते हैं और पूछते हैं अब बताओ कितना सेटिस्फेक्शन मिला. वो बोलता है 50 का सेटिस्फेक्शन मिला. फिर हम उसको अल्कोहल पिलाते हैं, दैट इज हार्ड ड्रिंक. वो पिलाने के बाद उसको पूछते हैं कि अब कितना सेटिस्फेक्शन मिला. तो वो बोलता है 100 का सेटिस्फेक्शन मिला. नाउ स्टूडेंट्स, यहां तुमने नोटिस किया होगा दैट मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ रही है. मार्जिनल यूटिलिटी कम होने की जगह बढ़ रही है. मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज. जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए. बट हमारे एग्जाम्पल में यहाँ तो सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है. दैट मीन्स ये एग्जाम्पल लॉ को फॉलो करता नहीं है, लॉ के ऊपर फॉलो होता नहीं है. इसी चीज को प्रूफ करने के लिए कि ये लॉ काम करता है, अल्फ्रेड मार्शल ने
अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ assumptions लिए. He takes certain assumptions. He takes what? Certain assumption. Now assumption वो होता है जो लॉ को सपोर्ट करता है. assumption वो होता है जो लॉ को सपोर्ट करता है. अल्फ्रेड मार्शल के कॉन्सेप्ट को पूरा वर्ल्ड एक्सेप्ट करे, इसलिए उसने कुछ assumptions या कंडीशन सबके सामने रख दी. इस लॉ को पूरा करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने, इस लॉ को समझने के लिए, ये लॉ कई काम करता है, इसको प्रूफ करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि तुम इस कंडीशन को फॉलो करो. अगर इस कंडीशन को फॉलो करोगे तो लॉ 100% काम करेगा. ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो 100% काम करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं तुम सबको 100 में से 90 आएंगे इकोनॉमिक सब्जेक्ट में, बट एक कंडीशन है, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी. अगर पढ़ोगे तो तुमको 100 आउट ऑफ 90 आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा. सेम उसी तरीके से लॉ को प्रूफ करने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने कुछ assumptions या कंडीशंस दुनिया के सामने, वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किया. लेट्स सी वो assumptions क्या थे. assumptions. First assumption है homogeneous. Now what do you mean by homogeneous? Homogeneous means same to same. It should be same in all aspect. It should be same in all aspect. That is same in shape, size, color, taste, preference. That is same in shape, size, color, taste, preference. In short, goods should be identical, goods should be similar, goods should be same. For example, अगर तुम फर्स्ट मैंगो कंज्यूम करते हो तो सेकंड भी मैंगो ही कंज्यूम करना है, तभी लॉ काम करेगा. अगर तुम फर्स्ट गुड डे बिस्किट खाते हो और फिर ओरियो बिस्किट खाते हो तो सेटिस्फेक्शन कम नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा. अगर सेम चीजें बार बार रिपीट करोगे तो ही सेटिस्फेक्शन कम होने वाला है, तभी लॉ ऑपरेट होगा. तो गुड्स क्या होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए. क्या होने चाहिए? होमोजीनियस होने चाहिए, ताकि लॉ ऑपरेट करे. कम टू सेकंड assumptions. सिंगल बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड. किसी भी कमोडिटी का यूज सिंगल होना चाहिए, मल्टीपर्पस यूज नहीं होना चाहिए. इसलिए लॉ को ऑपरेट करने के लिए अवॉइड मल्टीपर्पस यूज ऑफ कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी का मल्टीपर्पस यूज हमको अवॉइड करना है, तभी लॉ ऑपरेट होगा, वरना लॉ ऑपरेट नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज मल्टीपर्पस है. समझो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, तुमने फैन चालू कर लिया, बताओ सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा या कम होगा? सेटिस्फेक्शन ऑब्वियसली बढ़ेगा, फैन चालू करोगे तो. जहां और गर्मी लग रही थी फिर एसी चालू कर लिया. दोनों काम क्या कर रहा है? तुमको गर्मी से बचाएगा. फैन भी गर्मी से बचाने वाला है, एसी भी गर्मी से बचाने वाला है. अगर एसी चालू करोगे, फैन पहले चालू किया तो उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, लेकिन एसी चालू करोगे तो और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो क्या यहाँ पर लॉ ऑपरेट हो रहा है? क्या नहीं. लॉ को ऑपरेट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट सिंगल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, ना कि मल्टीपर्पस के लिए. अगर तुम फैन चला रहे हो तो फैन ही यूज करना है, तभी तुमको देखना है उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी. इलेक्ट्रिसिटी का यूज सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक ही चीज में यूज होना चाहिए, तो ही लॉ ऑपरेट होगा, वरना लॉ ऑपरेट नहीं होगा. तो ये था सेकंड assumptions. Now come to third assumptions. Continuous. Continuous, that is continuity. Continuity का मतलब क्या होता है? one after another. One after another. कोई भी चीज अगर कंज्यूम करते हो तो उसको एक के बाद दूसरा करना है, टाइम गैप नहीं रखना है. एग्जाम्पल के तौर पे, सपोज तुमने सुबह सुबह एक गिलास पानी पिया, उसके बाद तुम कहीं घूमने चले गए, तुम सपोज वॉकिंग करने चले गए, वॉक करते 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 तुम 3-4 घंटा कंटिन्यू तुमने वॉक किया, और वॉक करने के बाद तुम घर पे आए. तो घर पे आने के बाद में तुमने वापस एक गिलास पानी पिया. अब बताओ, सुबह पानी पिया था उसमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला था, या जब चल के आए, घूम के आए, थक के आए, तब पानी पी के तुमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला?
ऑब्वियसली जब तुम थक कर आए तभी तुमने पानी पिया, तो उसमें तुमको सेटिस्फेक्शन क्या मिला, ज्यादा मिला। लेकिन यहाँ पे लॉ काम कर रहा था क्या, नहीं। क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि तुमने क्या किया, टाइम गैप नहीं लेना है। जो कंजम्पशन हम करेंगे वो एक के बाद एक होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूटी। मीन्स अगर हम कंटिन्यूअसली प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे, किसी भी चीज को एक के बाद एक करेंगे, तो हमारी सेटिस्फेक्शन 100% कम होगी। नाउ नेक्स्ट फीचर इज रीजनेबिलिटी का मतलब होता है नॉर्मल। कोई भी चीज एक रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, ना तो ज्यादा बड़ी ना तो ज्यादा छोटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज तुमको भूख लगा था और तुमने मम्मी को बोला मम्मी मुझे रोटी दो, मम्मी ने क्या किया, एक बड़ी सी रोटी बनाई और तुमको दे दी। बताओ अब वो बड़ी सी रोटी तुम पूरा खा पाओगे क्या, पॉसिबल नहीं है। तुमने एक रोटी भी पूरा खत्म नहीं कर पाओगे, मीन्स तुमने आधा रोटी खाया होगा, मे बी थोड़ा सा रोटी खा पाओगे, पूरा बड़ा रोटी खत्म नहीं कर पाए। तो क्या तुमने दूसरा कंजम्पशन किया। जब तक तुम दूसरा कंजम्पशन करोगे नहीं, तो लॉ कैसे ऑपरेट होगा, तुम पहले पे ही क्या हो गए, थक गए। या फिर समझो सेकंड कंडीशन, तुमको मम्मी ने क्या कर दिया, एकदम छोटी छोटी रोटी बना के दे दी, ऐसे छोटी छोटी फिंगर्स में बैठ रही है, इतनी छोटी छोटी रोटी। तो तुम एक खाओगे तो तुमको दूसरा खाने का और ज्यादा क्या लगेगा, सेटिस्फेक्शन लगेगा, क्योंकि बहुत जोरों से भूख लगी है। तो तुम एक के बाद दूसरा भी खाओगे, उसमें भी और ज्यादा मजा आएगा, तीसरा खाओगे और भी ज्यादा मजा आएगा। तो लॉ ऑपरेट हो रहा है क्या, नहीं। लॉ को ऑपरेट करने के लिए हमको नॉर्मल साइज की चीजों का इस्तेमाल करना है, ना कि वो एकदम बड़ी होनी चाहिए, ना तो वो एकदम छोटी होनी चाहिए। रीजनेबल साइज का होगा तो ही लॉ ऑपरेट होगा, वरना लॉ ऑपरेट नहीं होगा। अगर तुमको कोई मटका भर के पानी दे दे, तो पूरा मटका का पानी खत्म कर पाओगे क्या, नहीं। तो वो एक के बाद दूसरा कंजम्पशन होगा ही नहीं, तो अजम्पशन फॉलो नहीं होगा। अगर तुमको कोई चम्मच से पानी पिलाए, तो भी तुम्हारा सेटिस्फेक्शन पूरा होने वाला नहीं है। दैट मीन्स goods should be normal, neither too small nor too big. Next assumption है rationality. Now rationality का मतलब क्या होता है, rationality का मतलब भी होता है normal. The consumer behavior should be normal. जो consumer है उसका behavior एक normal व्यक्ति जैसा होना चाहिए. He should not be drunkard और माइजर। ना ड्रंकर्ड मतलब वो शराबी नहीं होना चाहिए। देखो शराबी को जितना शराब पिलाओगे उसकी सेटिस्फेक्शन और बढ़ती जाएगी। वो एक पैक लगाएगा, उसको अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरे पैक में और मजा आएगा, तीसरे में और मजा आएगा। तो क्या वो रैशनल पर्सन है, नहीं, वो एक इरेशनल पर्सन है, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। उसी तरीके से माइजर बोलेंगे तो कंजूसों के ऊपर भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि वो भी नॉर्मल इंसान नहीं होते। कंजूस जो होता है वो कभी खर्चा नहीं करता है, वो कभी ये नहीं देखेगा कि मेरे को एक वड़ा पाव खाने से जो सेटिस्फेक्शन मिला, एक काम करता हूँ मैं दूसरा भी खा लेता हूँ। वो पैसा बचाने को देखेगा। जब वो खर्चा ही नहीं करेगा, एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद, एक वड़ा पाव खाने के बाद वो दूसरे के ऊपर कभी खर्चा ही नहीं करेगा, तो उसको लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा, तो उसके ऊपर लॉ ऑपरेट होता नहीं है। लॉ को ऑपरेट करने के लिए जो कंज्यूमर होगा वो एक तरीके से रैशनल होना। नेक्स्ट assumption है cardinal measurement means utility can be measured in terms of number. utility को हम किसी numbers के through measure कर सकते हैं। जैसे कि हमने जितने भी examples लिए जिसमें satisfaction की बात कर रहे थे, वो कुछ numbers के through हो रहा था, इसी को हम बोलते हैं कार्डिनल मेजरमेंट। यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। एज पर दिस अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ नंबर। लेट्स सी कांस्टेंट MU ऑफ मनी का यूटिलिटी पर्सन टू पर्सन डिफर होता है स्टूडेंट्स, पर्सन टू पर्सन डिफर होता है। अभी अगर आपको 1 लाख रुपया मिल जाए तो आपके लिए 1 लाख होगा, और वही अगर अंबानी को मिले तो वो सिर्फ 1 लाख होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी डिफर होती है डिफरेंट लोगों के हिसाब से, अलग अलग लोगों के हिसाब से। सपोज आज तुम्हारा बर्थडे और आज की पार्टी तुम लोग दे रहे हो, तुमने सबको बोला कि मैं तुमको वड़ा पाव खिलाऊंगा आज, आधा आधा, वो भी कितना खिलाऊंगा, आधा आधा। कंजूस हो, आधा आधा वड़ा पाव खिला रहे हो, चलो ठीक है। तो 1/2 करके तुमने अपने फ्रेंड्स को वड़ा पाव खिलाना स्टार्ट किया। तभी तो अचानक से तुम्हारे डैडी का फोन आता है समझो, और डैडी बोलते हैं कि बेटा आज हमारी 1 करोड़ की लॉटरी लगी। कितने की लॉटरी लगी, 1 करोड़ की लॉटरी लगी। तो अब तुम लोग बताओ, आधा आधा वड़ा पाव खिलाओगे या पूरा?
पूरा क्या, दो दो तीन तीन, जितना खाना है खाओ, आज की पार्टी मेरी तरफ से। अब बताओ पैसे की जो अहमियत है, वैल्यू है, वो चेंज हो गई कि नहीं? यही लॉ ऑफ अजम्पशन या लॉ ऑफ डीएमई कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। अगर पैसे की वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए, इट मींस व्हाट योर इनकम रिमेन कांस्टेंट और द वैल्यू ऑफ मनी शुड रिमेन कांस्टेंट। कम टू नेक्स्ट, लास्ट अजम्पशन है डिविजिबिलिटी। लास्ट अजम्पशन है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मीन्स कि गुड्स जो होने चाहिए वो डिविजिबल होने चाहिए, ना कि बल्कि। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मुझे टीवी लेना है, तो मैं टीवी कितना ले सकता हूँ? ऑब्वियसली एक ही टीवी लूंगा। एक ही टीवी अगर मैं कंज्यूम करूंगा, अगर एक ही टीवी मैं खरीदूंगा, तो क्या लॉ ऑपरेट करेगा? लॉ क्या कहता है? कंजम्पशन बढ़ाओ। एज कंजम्पशन इंक्रीजेज, diminishing marginal utility decreases, that is marginal utility decreases। तो डिविजिबिलिटी, क्या मैं टीवी पे डिविजिबिलिटी कर सकता हूँ? आधा आधा कर सकता हूँ टीवी को। सपोज मुझे कार लेनी है, तो कार लेने के लिए क्या मैं दो कार लूंगा? क्या नहीं, एक ही कार लूंगा। तो ये एक तरीके से बल्कि गुड्स है। क्या है ये? बल्कि गुड्स। जब बड़े गुड्स होते हैं उस पे लॉ काम करता नहीं है, लॉ ऑपरेट करता नहीं है। लॉ सिर्फ विजिबल गुड्स पे काम करता है। जैसे कि अगर मैं किसी चीज को डिवाइड कर सकूं, जैसे कि चावल, गेहूं, दाल, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो लॉ अज्यूम करेगा, जैसे टीवी पे नहीं अज्यूम करेगा, कार पे नहीं अज्यूम करेगा। गाय भैंस खरीदोगे तो गाय भैंस को तुम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उस पे ये लॉ काम करने वाला नहीं है। होपफुली तुमको अजम्पशन समझ में आया है। लेट्स स्टार्ट एक्सेप्शंस। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन मीन्स व्हाट? एक्सेप्शन मीन्स समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अलग होना। इट्स कॉल्ड एज एक्सेप्शन। नाउ अजम्पशंस क्या था? अजम्पशंस वो था जो लॉ को सपोर्ट करता था। एक्सेप्शन क्या है? जो लॉ को सपोर्ट नहीं करता है। एक अजम्पशन क्या था? जो लॉ को सपोर्ट करता था, लेकिन एक्सेप्शन लॉ को सपोर्ट नहीं करता है। नाउ अजम्पशंस किस बेस पे लॉ को सपोर्ट करते थे? क्या कहता था लॉ? लॉ कहता था एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम होना चाहिए। एक्सेप्शन उसका ऑपोजिट है। एक्सेप्शन उसको ऑपोजिट वे में समझाता है। एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? कंजम्पशन के बढ़ने से मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ रही है। इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेप्शंस। चलो इसके एक्सेप्शंस देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सेप्शन है हॉबीज। हॉबीज बच्चों क्या होता है? हॉबीज का मतलब होता है जो चीजें हमको करना पसंद है उसी को हम क्या कहते हैं? हॉबीज। जो चीजें हमको करना पसंद है उसी को हम क्या कहते हैं? हॉबीज। नाउ जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे शॉपिंग करना पसंद है, खेलना पसंद है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? हॉबीज बोलता हूँ। जैसे कि सपोज मैं एक शॉपिंग मॉल में गया हूँ, मेरे पास इस मंथ की सैलरी आई है और मैं इस सैलरी से क्या करने वाला हूँ? शॉपिंग करने वाला हूँ। तो मैंने एक शॉप से शर्ट खरीदे, दूसरे शॉप से शर्ट खरीदा, फिर मैं जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मैं क्या करने वाला हूँ? शॉपिंग करते रहने वाला हूँ। तो बताओ, मैं लॉ क्या कहता है कि जैसे जैसे तुम किसी चीज का कंजम्पशन बढ़ाओगे उसकी सेटिस्फेक्शन की जो लेवल है वो कम होनी चाहिए। बट इन केस ऑफ हॉबीज ऐसा होता नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो क्रिकेट खेलते वक्त मुझे बिल्कुल भी डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मुझे बिल्कुल भी कंटाल नहीं आता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता है। मैं खेलते ही जाता हूँ। मुझे एक बॉल खेलने मिलता है, मैं और 10 बॉल खेलने की इच्छा करता हूँ, मैं और भी खेलना पसंद करता हूँ। तो ये क्या है कि मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है कम होने की जगह पे क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसीलिए एक्सेप्शन है हॉबीज। हॉबीज पे लॉ ऑफ डीएमयू कभी काम करता नहीं है। ये लॉ ऑफ डीएमयू का क्या है? एक्सेप्शन है, ऑपोजिट है। लॉ ऑफ डीएमयू का क्या है? एक्सेप्शन, दैट इज ऑपोजिट। दूसरा एक्सेप्शन है म्यूजिक। तो म्यूजिक पे भी लॉ अप्लाई होता नहीं है। म्यूजिक भी एक एक्सेप्शन है हमारे लॉ ऑफ डीएमयू का। मार्जिनल यूटिलिटी इसमें भी क्या होती है? बढ़ती है। कम होने की जगह पे क्या होता है? बढ़ता है। कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ेगी। यही एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का। तो म्यूजिक जो है, म्यूजिक बहुत लोगों को सुनना पसंद है। म्यूजिक
बहुत सारे लोग सुनते हैं और लगातार सुनते रहते हैं। बहुत लोगों को तुमने ट्रेन में जाते हुए, मे बी रास्ते पे चलते हुए तुमने देखा होगा कि वो हेडफोन लगाए रहते हैं। बहुत लोग फ़ोन पे बात भी करते हैं, तो उसमें बहुत लोग गाना सुनते हुए वो टाइम बिताते हैं। तो देखो उनका जो सैटिस्फैक्शन है, एक गाना सुना, दूसरा गाना सुना, फिर तीसरा गाना सुना, तो उधर उनकी जो सैटिस्फैक्शन लेवल है वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ते जा रही है। तो म्यूज़िक एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू के लिए। नेक्स्ट एक्सेप्शन है माइजर। माइजर बच्चों, माइजर का मतलब होता है कंजूस। अब कंजूस व्यक्ति जो होते हैं, अगर वो कोई चीज परचेस करते हैं या कोई चीज कंज्यूम करते हैं, तो वो एक ही यूनिट तक कंज्यूम करेंगे। पहला यूनिट कंज्यूम करने के बाद वो रुक जाएंगे। अगर कोई चीज खरीदेंगे तो एक ही बार खरीदेंगे, वापस वो नहीं खरीदने वाले। या कोई चीज खाएंगे, किसी चीज को खरीद के खाने वाले होंगे, तो वो अपने आप को वहां पे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। वो बोलेंगे कि हम घर जाके खा लेते हैं इससे अच्छा। तो माइजर कभी भी कोई चीज कंज्यूम करता है तो वो बहुत लिमिट में कंज्यूम करता है। और हमारा जो लॉ है वो क्या कहता है कि कंजम्पशन को बढ़ाना है। कंजम्पशन को बढ़ाओगे तो लॉ अप्लाई होगा। तो माइजर कंजम्पशन बढ़ाएगा ही नहीं। कंजूस व्यक्ति है तो वो कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा। कंजम्पशन नहीं बढ़ाएगा तो उस पे ये लॉ ऑपरेट होगा नहीं। इसलिए माइजर भी एक एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का। नेक्स्ट एक्सेप्शन है मनी। बच्चों, मनी पे भी लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई नहीं होता है, ये भी एक एक्सेप्शन है। किसी को कम पैसे पसंद होते हैं क्या? सब पैसे के पीछे भागते हैं। अपना सपना क्या है? मनी मनी मनी। अपना सपना क्या है? मनी। सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसा जितना तुम्हारे पास बढ़ेगा तो उसकी जो यूटिलिटी है क्या वो कम होने वाली है? नहीं, उसकी यूटिलिटी बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे बराबर एक्सेप्शन में बैठ रहा है। एज कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। जितना पैसा तुम्हारे पास आएगा उतना ही ज्यादा तुम क्या होगे, सेटिस्फाइड होगे। समझो अगर तुमको कोई 1 लाख रुपया सैलरी देता है और फिर बोलता है कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता हूँ 1,50,000, तो तुम क्या उसको मना कर दोगे? नहीं करोगे, क्योंकि तुमको पैसा मिलने से क्या मिल रहा है, और सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और अच्छा लग रहा है। तो दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है, मार्जिनलिटी डिक्रीज नहीं हो रही है। तो भी ये भी एक पॉइंट क्या है, ऑपोजिट टू एग्जम्पशन है, इसलिए ये किधर दिखाया गया है, एक्सेप्शन में। नेक्स्ट है पावर। पावर भी बच्चों एक एक्सेप्शन है। पावर का मतलब क्या होता है, किसी के पास किसी भी तरीके का पावर होना। पावर आने के बाद है ना इंसान और पावर पाने की कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे समझो मैं तुमको पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लीडर बना देता हूँ। पूरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी का लीडर बना देता हूँ। वहां का लीडर बनने के बाद तुम समझो एक एमएलए बन जाते हो। उसके बाद तुम्हारी और इच्छा बढ़ेगी, तुमको और पावर चाहिए रहेगा। एमएलए के बाद तुम सीएम बनना पसंद करोगे। सीएम बनने के बाद शायद तुम पीएम भी बनना पसंद करो। तो देखो जितना पावर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाने के वजह से तुम्हारी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी बढ़ रही है। तो देखो पावर एक तरीके से क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। दैट मींस जैसे जैसे तुम्हारा पावर बढ़ेगा तुम्हारी सेटिस्फेक्शन और बढ़ते जाने वाली है, कम होने वाली नहीं है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। लास्ट देखते हैं। लास्ट एक्सेप्शन है ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड या एडिक्शन। नाउ जिन लोगों को किसी चीज का नशा करने का आदत लग जाता है और उस नशे को अगर वो जितना ज्यादा करेंगे उनको उस चीज का सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलता है। जैसे शराबी को अगर एक पैक पिलाओगे तो उसको कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जैसे ही वो दूसरा पिएगा उसको और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तीसरा और पिएगा फिर और सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। फिर एक टाइम के बाद उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल हो जाएगी बहुत हाई हो जाएगी। दैट मीन्स देखो ये लॉ जो है ड्रंकर्ड्स पे भी अप्लाई नहीं होता है। ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डीएमयू के ऑपोजिट है। लॉ ऑफ डीएमयू एज कंजम्पशन इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज। लेकिन ये ड्रंकर्ड पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो एक तरीके से नॉर्मल नहीं है। होपफुली तुम लोगों को assumptions एंड एक्सेप्शंस समझ में आए। अभी बच्चों जरा ध्यान से समझना, देयर इज एक्चुअल में नो रियल एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू का कोई रियल में एक्सेप्शन नहीं है। ये बुक में दिया है एक्सेप्शन, बट लॉ ऑफ डीएमयू पे कोई एक्सेप्शन अप्लाई होता नहीं है। क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू क्या था, लॉ ऑफ डीएमयू था कंजम्पशन इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। लेकिन
एक्सेप्शन क्या है, उसका ऑपोजिट। लेकिन ये जितने भी एक्सेप्शंस हमने देखे, हॉबीज, म्यूजिक, माइजर, मनी, पावर, ड्रंकर्ड, एडिक्शन, या ये जितने भी हमने एक्सेप्शंस देखे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं लॉ को ब्रेक करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ को प्रूफ करने के लिए, लॉ को वर्क करने के लिए कुछ अजम्पशंस दिए थे। लॉ तभी वर्क करेगा जब तुम उस अजम्पशंस को क्या करोगे, फॉलो करोगे। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है, ये कहीं ना कहीं उस लॉ को ब्रेक करते हैं। एक एक करके देखते हैं कि ये जो एक्सेप्शंस है वो किस तरीके से लॉ को ब्रेक करता है। पहला वाला है हॉबीज। हमने एग्जांपल में देखा कि जो शर्ट्स मुझे पसंद है, मैं शॉपिंग करने के लिए निकला हूँ और मैं शर्ट्स या बहुत सारी चीजें परचेज कर रहा हूँ, क्या मैं सिमिलर टाइप की चीजें परचेज करूंगा? पहला अजम्पशन ही क्या था, होमोजीनियस। चीजें क्या होनी चाहिए, होमोजीनियस, मतलब सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, प्रेफरेंस। अगर सेम होगी, सेम टू सेम होगी, तो ही मेरा लॉ काम करेगा। तो एक्सेप्शन हॉबीज, क्या सेम टू सेम हम करने वाले हैं? क्या मैं जो शॉपिंग कर रहा हूँ, क्या मैं सेम कलर का शर्ट, सेम कलर, सेम डिजाइन, सेम तरीके का शर्ट परचेज करूंगा क्या? या मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या क्रिकेट में मैं एक ही तरीके के शॉट्स प्ले करता हूँ क्या? क्या मैं सिर्फ एक ही स्ट्रेट ड्राइव ही मारते रहता हूँ क्या? नहीं, मैं कवर्स में भी खेलता हूँ, मैं डिफरेंट शॉट्स भी खेलता हूँ। तुमने मोस्टली क्रिकेटर्स को देखा होगा कि एक ही शॉट नहीं खेलते। तो दैट शोज कि ये जो सेशन है वो assumption को कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं। तो हॉबीज जो है हमारे होमोजीनियस के अजम्पशन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। सेकेंड वाला है म्यूजिक। म्यूजिक किस लॉ को ब्रेक कर रहा है? म्यूजिक भी एक तरीके से होमोजीनियस वाले अजम्पशन को ब्रेक कर रहा है। कैसे? क्या तुम गाना भी जो सुनते हो, क्या सिमिलर सॉन्ग बार बार सुनते हो? नहीं। या उसके अंदर की जो वर्ड्स है वो बार बार सुनते हो? तुम गाने बदल बदल के सुनते हो, या तुम उसके अंदर के वर्ड्स बार बार चेंज होते रहते हैं? तो देखो, अजम्पशन क्या कह रहा था, होमोजीनियस यूनिट होना चाहिए, दैट सेम सेम साइज, सेम शेप, सेम कलर, सेम प्रेफरेंस होना चाहिए, तभी लॉ काम करेगा। तो म्यूजिक हमारे होमोजीनियस की चीजों को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, लॉ को ब्रेक कर रहा है। माइजर, माइजर एक नॉर्मल व्यक्ति है ही नहीं, तो ये एक रैशनल वाले पॉइंट को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। रैशनल दैट मींस वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं, क्योंकि वो माइजर है, कंजूस है। कंजूस कभी नॉर्मल नहीं होते। मनी, मनी पैसे का क्या सिंगल यूज होता है? पैसा क्या एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होता है? डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। तो हमने में देखा था सिंगल वांट, चीजें जो यूज होनी चाहिए वो सिंगल होनी चाहिए, जो गुड्स यूज होना चाहिए वो सिंगल होना चाहिए। कि मनी सिंगल चीजें के लिए यूज होता है क्या? नहीं, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए क्या होता है, यूज होता है। तो मनी, मनी का मल्टीपर्पज यूज है, इसलिए ये सिंगल वांट के लॉ को क्या करता है, ब्रेक करता है। पावर, पावर जो है ये भी एक तरीके से लॉ को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है? ये कौन सी लॉ को ब्रेक करता है, कौन से अजम्पशन को ब्रेक करता है? ये भी एक रैशनैलिटी वाले अजम्पशन को ब्रेक करता है। कैसे? जो जिनको पावर चाहिए होता है, जो पावरफुल इंसान होता है, वो कभी नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता है। तो ये भी रैशनल चीजों को ब्रेक करता है। ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड या एडिक्शन, ये भी एक तरीके से लॉ को ब्रेक करते हैं। कौन से लॉ को ब्रेक करेंगे? ये भी रैशनलिटी वाले लॉ को ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि ड्रंकर्ड भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, नशा करने वाले भी कोई नॉर्मल नहीं होते हैं। होपफुली बच्चों ये क्वेश्चन तुमको समझ में आया होगा। ये जो लास्ट में मैंने बताया, ये एक तरीके से कभी ना कभी फिलअप में मे बी तुमको गिव रीजंस में पूछा जा सकता है कि इज देयर एनी रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू? तो देयर इज नो रियल एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। ये पूरा एक्सप्लेन करना है और उसमें बताना है कि देयर इज नो रियल एक्सेप्शन। ये एक्सप्लेन करोगे और उस लॉ को कैसे ब्रेक करता है उसका एक्सप्लेनेशन भी शायद तुमको करना पड़ सकता है। तो मैंने ये लास्ट वाला पॉइंट तुमको एक्सप्लेन किया। और बच्चों इस चीज को और अच्छे से हम एक्सप्लेन करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो तुमको समझ में आया। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उनके डाउट्स को जितना हो सकता है क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जब हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो हम इस क्वेश्चंस को वापस अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि जो लाइव सीखने में जो मजा है वो इस ऑनलाइन के थ्रू में इतना नहीं एक्सप्लेन कर सकता। फिर भी मैंने बहुत अच्छा ट्राई किया है कि तुमको अच्छे से ये पॉइंट क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। होपफुली ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आ रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।